हाँ जी, वेलकम एवरीवन। तो आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट डे है इस बुक का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आज। हाँ जी, तो हमारा लास्ट यूनिट है ऑन अ मीनिंगफुल लाइफ, चैप्टर नंबर 32, द प्रॉब्लम विद आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। Why meaning matters? What are values? राइट, इसकी समरी से शुरू करते हैं। हाँ जी, वुड लाइक टू रीड। I'll go ahead, Bhaiji. हाँ जी, Okay. So the problem where I want to be happy. Okay, with I just want to be happy. Chapter summary. We are often sold the idea that happiness is the norm, and anything outside of that could be a mental health problem. Second, sometimes we are not happy because we are human and life is difficult. Things that make life worthwhile bring us more than just happy feelings. They bring us a mix of happiness, love, joy, fear, shame, and hurt at times too. Things that make life worthwhile bring us more than just happy feelings. They also bring us mix of happiness, love, joy, fear, shame, and hurt at times too. Getting clarity on our personal values can guide us on setting goals that will bring meaning and purpose. Keeping our values front and center also helps us to persevere through painful points in life, knowing we are on the right path. Keeping our values front and center also helps us to persevere through painful points in life, knowing that we are on the right path. हाँ जी। तो क्या इम्पोर्टेंट टेकअवेज लगते हैं इस चैप्टर से, समरी से? Point number 3, bitter truth of life. That is bitter truth of life, that we always want to be happy, but life is full of mixture of happiness, love, joy, fear, shame, heart, etc. It's a bitter truth or just truth? Okay, as we take it, personal. It's not bitter actually. Okay, it's sweet truth. It's truth. It's truth of life that it is mixture of everything, all kinds of emotions. If it is bitter, then it means we bought the idea that happiness is the norm, and anything outside that could be the mental health problem. Right, sir. Right. If it is bitter, then bitter truth, then it is right. You are very right. So it is truth that only keeping, I mean, we just can't be always happy. There has to be all sorts of emotion. Yes. Now, last point is again correlates to that. Keeping our values front and center also help us to persevere through painful points in life, knowing we are on the right path. उसके साथ बहुत ही सुंदर बैलेंसिंग लाइन है, पॉइंट है ये. राइट, जैसे हमने वो मूवी देखा सुभाष चंद्र बोस वाला. So he went through all kind of emotions. Yes. Not just happiness, other than happiness. Yes.
kind of anger also, aggression also, sacrifice also, lot of many Emotions. emotions. और वो क्योंकि उनकी वैल्यूज के अलाइनमेंट में थे सारे, लेकिन और वैल्यू क्या थी? फ्रीडम फॉर द कंट्री, फ्रीडम फॉर द नेशन. तो थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थ वाइल बनाया उनकी लाइफ को उन्होंने. ब्रिंग अस मोर देन जस्ट हैप्पी फीलिंग्स. तो हर टाइम तो हैप्पी फीलिंग्स नहीं थी. ही लेफ्ट हिज फैमिली ऑल्सो, his wife and daughter and everything. Even his mother also. When he was leaving his Yes. mother, that time also he was very hurt. Mother but he also, could not. motherland also. Motherland also. And he was very hurt that time, but he couldn't help it. He had a goal in front of him, bigger goal in front हाँ. of him. तो इसीलिए लास्ट वाला पॉइंट भी उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है. कीपिंग आवर वैल्यूज फ्रंट एंड सेंटर ऑल्सो हेल्प अस टू परसिवियर थ्रू पेनफुल पॉइंट्स. पेनफुल पॉइंट्स तो थे ही वो सारे. कितने दिन, कितने महीने देश से दूर रहते हुए उनको हो गए थे. Painful points in the life, knowing that we are on the right path. So he knew And that he was on the right path. more thing was, when you saw that he was crying, but because he was feeling that because of my decision, so many things are going wrong, so many people are dying. That thing was also hurting him somewhere. So But this is even also all of that was worthwhile. So it is like also cost benefit analysis. So how do we know okay, what are our values? good question. For example, जैसे अभी हम जो लोग इस सेशन में हैं, why we are in this session at this point of time, 1 p.m. What does it reflect? What are our values in this context? So for me, it is like this book was very important to me. It is something which was book giving cannot me be some. value. No, book means the knowledge in it, the knowledge which was giving, written in it, and it was giving me the knowledges. So that was so important to me. I wanted to know उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, लाइफ को कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं उसको. तो I एक want to पॉसिबल correlate. वैल्यूज की लिस्ट बनाते हैं इसके अराउंड. रीडिंग कैन बी ए वैल्यू. अभी हम फाइनल नहीं कह रहे, लेकिन रीडिंग कैन बी ए वैल्यू फॉर दोज हु आर इन दिस सेशन राइट नाउ. What else could be the value? रीडिंग डिफरेंट चीज है, लर्निंग अलग चीज है. लर्निंग भी हम कह सकते हैं. लर्निंग नॉलेज. लर्निंग इज ऑल्सो अ वैल्यू. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि किसी का रीडिंग वैल्यू ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल वेलबींग वैल्यू है. दैट्स व्हाई दे आर इन दिस सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर बुक. So still we are just assuming कि this could be the value. Not sure कि यही है या नहीं है. और क्या वैल्यू हो सकती है? Commitment. कमिटमेंट भी हो सकता है. यस. कमिटमेंट टू ग्रुप. commitment to sir, that yes sir, we will attend the class. To the group, to the process. Yes sir. कमिटमेंट. ये तो भी हो बहुत सकता है कि बहुत बड़ा वैल्यू है ये भी हो सकता है कि किसी को ये लगता हो कि दिन का हमारा टाइम वैसे भी वेस्ट चला जाता है, तो लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम. तो यूटिलाइज माय टाइम इन अ वर्थवाइल वे. दिस कुड बी द वैल्यू. Yes. नॉट रीडिंग एज सच. अगर हम म्यूजिक क्लास करते तो भी शायद वो यहाँ हो सकते थे. सर मुझे कुछ सीखना है, इसीलिए मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ. तो कल नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मुझे बुक का अच्छा लगता है. जी. तो लर्निंग आपका वैल्यू हो गया. अभी तक 5 पॉइंट्स हुआ. Being in a group, yes. Exactly. Social solidarity, that kind of thing, social support, that could also be the value.
कि maybe you will not be able to find time to read it alone, but at least you get. हाँ, so no matter what we do in a group, we will join the group. This could also be the thing, ना? I didn't understand, sir. जैसे कि रीडिंग अभी हम कर रहे हैं, Hmm. तो अगर हमारा ग्रुप में ज्वाइन होना वैल्यू है, तो चाहे हम रीडिंग करें चाहे कुछ भी करें, वो ग्रुप में ज्वाइन करेंगे अगर उनका ग्रुप में ज्वाइन होना वैल्यू है, सोशल सपोर्ट सिस्टम। तो for the same action there could be different values. So there is a process of value elicitation. तो वैल्यूज को पता लगाया जा सकता है और हम खुद भी जान सकते हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाए। सर मैंने पॉइंट्स लिखना नहीं हुआ। पॉइंट लिखना है कुछ और? हाँ सर, लिख रही थी। ओके, विच वन? अच्छा, I'll take a snapshot, स्क्रीनशॉट बाद में लिख लूंगी। हाँ जी, हाँ जी। अरे जा चलेगा। वो फिर वीडियो में भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ सर। ओके, चैप्टर नंबर 33, वर्किंग आउट व्हाट मैटर्स। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, वैल्यूज। सर्कल द वैल्यूज दैट फील रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट टू यू। बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिलेवेंट एक्टिविटी है ये। तो एंथुजियाज्म, ऑनेस्टी, फेथ, फेयरनेस, kindness, caring, compassionate, strength, This was given in ambitious, the group once. yeah, dependable, reliable, present, flexibility, curiosity, open-mindedness, daring, loyalty, creativity, adventurous, gratitude, trustworthy, सर, understanding। जी, इतना सारा क्वालिटीज मुझ में रहते हुए भी कैसे एक आध बुरा कैरेक्टर रह जाता है? इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर अच्छा ही है, सब है, सबका सब, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे क्यों एक आध रह जाता क्यों है? वो एक आध में नहीं रखना चाहती हूँ। कौन सा नहीं रखना चाहते हो बताओ? इसमें लाइक ये कि सामने से सपोज यू आर thinking about me something which I can see on your face, and I feel bad about it. If you are thinking something negative and I understand it, that makes me feel very bad. वो bad feeling नहीं चाहिए, मुझे सोचना ही नहीं है उस बारे में। ये ऐसे कैसे इसको निकाल दूं मैं? देखो, इसमें ये पर्सपेक्टिव लेके अगर हम चलें तो बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर ये सारी वैल्यूज हैं और सबके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि ये हम सबकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं और सबके अंदर वो हैं। लेकिन हमने जो यूज ज्यादा की है वो हमारी देखने में आती है, औरों को भी देखने में आती है, और जो हमने यूज नहीं की है वो देखने में नहीं आती है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे यूज करना है इसे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि यूज भी हम करते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ लोगों के साथ करते हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं करते हैं। ये भी हम चूज करते हैं कि इनके साथ हमें नहीं करना है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम सबके साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काइंडनेस की वर्च्यू है, हम मुझे तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसके अंदर काइंडनेस ना हो, लेकिन वो चूज करते हैं कि किसके प्रति उन्हें काइंड होना है, किसके प्रति नहीं होना है। बल्कि वो किसी के प्रति अनकाइंड होने को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए काइंड हूँ, इसके लिए मैं इनके लिए अनकाइंड हूँ। I say something, sir, जी, because you are making me understand something very important. मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई कुछ नेगेटिव कर रहा है, वो अपने आप मेरे आंख में आ जाता है, वो मैं नहीं चाहती किसी भी तरह। एग्जैक्टली। तो कोई वो क्यों आता है? कोई वो भी क्या मैं क्रिएट करती हूँ? इसको समझ लेते हैं, कोई भी एक्शन जब हम बहुत बार बार करते हैं तो वो हमारे न्यूरल पाथवेज का पार्ट बन जाता है, और वो इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना भी हो जाता है। तो वो हैबिट बनाया हमने ही है, न्यूरल पाथवे हमने ही बनाया है। अब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे।
लेकिन हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अल्टीमेटली, Okay. Now और put हम a ही new उसे चेंज कर सकते हैं. belief. Put a new belief now. Your value. यस इट इज. Okay. Thank you, sir. तो जो भी हम कह रहे हैं अनजाने में भी हम कर रहे हैं, वो हम ही कर रहे हैं. Hmm. और यही एक तरह से जोहारी विंडो का भी यूटिलिटी है इसमें थोड़ा बहुत, कि जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारे अवेयरनेस में आए, स्पॉटलाइट में आए. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ये बहुत ही अच्छी वैल्यूज की चीजें हैं कुछ. ओके, आगे कुछ और भी दिया है इसमें. वैल्यूज. अब जैसे किसी की वैल्यू सपोज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्यूरियोसिटी, पर्सनल ग्रोथ है, जो कि हम सबकी है, तो क्या गोल होगा? एजुकेशनल कोर्सेज. डे टू डे बिहेवियर्स क्या रिफ्लेक्ट होंगे? रीडिंग, स्टडिंग, challenging self with exams or performances that push and expand those skills and promote learning. असाइनमेंट करना, ऑडियो रिफ्लेक्शन शेयर करना. और I जिसकी जिसकी ये वैल्यू नहीं होगी उनको ये बर्डन लगेगा, वो कहेंगे हम knew ग्रुप it is छोड़ दें क्या. coming. जिनकी वैल्यू लव एंड कंपैशन है. हाँ, ये कितना इंटरेस्टिंग है. 5 लव लैंग्वेजेस का भी इसमें कॉन्टेक्स्ट हम ले सकते हैं. दिस इज अनदर बुक. To remember a special date for loved ones, to visit relatives at certain times, anniversaries, birthdays, all these things. Expressing love and compassion in small ways every day, writing down dates of birthday and anniversaries, making time to spend with loved ones, helping an elderly neighbor across the road. तो हमारी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारे गोल्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है. और जब हमारी वैल्यूज के साथ साथ सारी चीजें होती हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट फील करते हैं, मतलब वी फील आवरसेल्व्स. तो वैल्यू चेकिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी अच्छे. इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको देख रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू मोस्ट लाइक टू बी इन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ? व्हाट डू यू वांट टू स्टैंड फॉर? व्हाट डू यू वांट योर एफर्ट्स टू रिप्रेजेंट? व्हाट कंट्रीब्यूशन डू यू वांट टू मेक? व्हाट क्वालिटीज और एटीट्यूड डू यू वांट टू ब्रिंग टू दिस एरिया ऑफ योर लाइफ? जो ये सारे एरिया दिए हुए हैं. अब जैसे कि देयर इज ए This book पर्सन, is just amazing. किसी का पर्पज है कि टू मेक इंडिया रीड, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? लर्निंग, रीडिंग. किसी का मिशन है कि पूरी इंडिया को हेल्दी बनाना, निरोगी बनाना, तो हेल्थ उनकी वैल्यू हो गई. इस तरह से लॉट ऑफ थिंग्स. द वैल्यूज स्टार. क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर, ये भी काफी हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें ये. जी, चैप्टर समरी. कौन पढ़ेंगे? Padu, sir. हाँ जी. Point number रीडिंग 1. वैल्यू है ना आपकी? Go ahead. पढ़ लीजिए. Assignment values नहीं है, reading values है. There are number 1. There are some simple exercises you can do to get some clarity on your values as they are today. There are some simple exercises you can do to get some clarity on your values as they are today, which you told us right now. Number 2, values can change over time and how much we live in line with them can change. So it helps to do a regular values check-in. It means not only today, time to time, we have to keep checking our values. When we
use our values to guide our goal setting, it also helps to create our day-to-day purpose. Number 4, the focus is not on what you want to happen for you, but on the kind of person you want to be, the contribution you want to make, and the attitude you want to face life with, no matter what happens. This is very important. I would like to read it once again. The focus is not on what you want to happen for you, but on the kind of person you want to be, the contribution you want to make, and the attitude you want to face life with, no matter what happens. इसको थोड़ा क्लैरिफाई करे सर, मीनिंग तो समझ में आया जी। इसमें काफी सारी बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट से अगर हम लें तो जैसे उन्होंने कहा कि एज दे आर टुडे, मतलब इट कैन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड हाउ मच वी लिव इन लाइन विद देम, कितनी अलाइनमेंट में हमारे यहाँ वो चेंज हो सकता है। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं लाइफ के, तो वो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमारा कॉलेज पूरा होता है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? जॉब, मनी मेकिंग, तो हमारी वैल्यूज़ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे फिर हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, मिड लाइफ उस एज में आते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो और ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो रेगुलर वैल्यू चेक इन करना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतना इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए उसके लिए। और जब वो हमारी गोल सेटिंग उसके अलाइनमेंट में होती है, देन वी फील एट ईज। फिर है लास्ट पॉइंट, इसका मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी हमारी वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई है, द काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू बी। तो आइडेंटिटी से कनेक्शन है इसका, द कंट्रीब्यूशन यू वांट टू मेक एंड द एटीट्यूड यू वांट टू फेस लाइफ विद। आप किसी भी ऐसे पर्सन को देखें जिसके बारे में आपको लगता है कि इनकी लाइफ बड़ी मीनिंगफुल है, तो उनका फोकस इन तीनों बातों पे ही है। उनको बहुत क्लैरिटी है कि उनको किस तरह का पर्सन होना है, उनको क्या कंट्रीब्यूट करना है, और किस तरह उनका लाइफ के लिए आउटलुक या एटीट्यूड रहेगा। इन बातों पे जब क्लैरिटी है तो फिर वो कंप्रोमाइज नहीं करते बहुत सारी चीज़ों के साथ। I have an example in front of me. My daughter is like that, absolutely clear about her goals and what she wants to do, how she wants to live, everything. And when I see her at this age, she's so clear, focused, everything, I feel good. And उस समय लगता है काश उसके उम्र में हम ऐसे होते, उतना फोकस्ड होते तो और भी अच्छा होता। As such, I'm not in a bad stage, but और भी अच्छा हो सकता था। गुड, राइट। तो किसी को कुछ और शेयर करना है इसमें? Fourth point, when we use our values to guide our goal setting, it also helps to create our day-to-day purpose. जैसे किसी के वैल्यू हेल्थ है तो वो क्या करेंगे? वो प्रॉपर डाइट के बारे में कुछ अपना गोल सेटिंग करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और जैसे कि ये बात हमने की कि ये चेंज हो सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमें हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस आती है, जैसे कि कोविड आया तो लोगों की वैल्यूज़ कितनी शिफ्ट हो गई। कुछ लोगों की परमानेंटली हो गई, कुछ की फिर सेम वैसी हो गई, सिर्फ 2 साल के लिए चेंज हुई। कोविड गया फिर वो सब कुछ गया फिर वैसे ही। तो इट मे ऑल्सो हैपन। और हम इसमें किसी को जज नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि इनकी वैल्यूज़ अच्छी नहीं है। हर एक की वैल्यूज़ उनके लिए है, उनके लिए जो वैल्यू है वो उनके लिए ठीक है।
अब उनका बिहेवियर उसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो उनको देखना है। थैंक यू सर। जी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 34 हाउ टू क्रिएट ए लाइफ विद मीनिंग। बहुत ही अच्छा, ये एक इटर्नल क्वेश्चन जैसा है, सभी का क्वेश्चन होता है। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे समरी? श्वेता जी, गुरप्रीत जी, आप में से कोई? Am I audible? हाँ जी। When we decide it's time for a change, there can be a tendency to come up with a huge, radical new goal. Simply having a goal is not enough to ensure your life changes and stays changed. Spending time thinking about and visualizing the person you intend to be and turning those ideas into concrete, sustainable actions can change how meaningful those efforts feel. Very good. Nice one. Linking your intentions to your sense of identity allows the new behavior to continue way beyond the initial goal. काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि बाई चांस हमें ये रियलाइजेशन आ गई कि हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई रेडिकल न्यू गोल सेट कर लेते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिकल न्यू गोल हम सेट करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा, मोर लाइकली ऐसा ही होगा। अगेन फिर सिंपली हैविंग ए गोल इज़ नॉट एनफ टू एंश्योर कि लाइफ चेंजेस रहेंगे वो। फिर थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्पेंडिंग टाइम थिंकिंग अबाउट एंड विजुअलाइजिंग द पर्सन यू इंटेंड टू बी एंड टर्निंग दोज आइडियाज इनटू कॉन्क्रीट सस्टेनेबल एक्शंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कोचिंग प्रोसेस में भी, क्योंकि हम में से नॉलेज की कमी किसी के भी पास नहीं है, नॉलेज बहुत है, अंडरस्टैंडिंग भी है, but turning those ideas into concrete sustainable actions, this is important thing, can change how meaningful those efforts feel. अदरवाइज हम एक्शन लेना शुरू कर देंगे, फिर वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, फिर नहीं होगा। दैट इज द ओनली चैलेंज। फिर वो सस्टेनेबल भी कैसे हो, उसका एक ये सिंपल सा ट्रिक है कि लिंकिंग आवर इंटेंशन टू आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी अलाउज the new behavior to continue way beyond the initial goal. इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे सपोज कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जिस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ऐसी चीजें आती हैं, तो जब तक उनका एग्जाम है तब तक तो वो पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर या न्यूज़ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनके वो आइडेंटिटी के लेवल पे नहीं आया है तो वो एग्जाम कंप्लीट होते ही वो सारा छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन उनकी आइडेंटिटी ये है कि आई एम एन अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ कि मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो फिर रिगार्डलेस ऑफ एग्जाम या रिगार्डलेस ऑफ एनी गोल वो कंटिन्यू रहता है। या दूसरा हम टाइम ट्रैकर का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब तक हम लेट से कोचिंग के प्रोसेस में है तो हम टाइम ट्रैकर रख रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो
कोई हमें देखने वाला है, वीकली हमारी अकाउंटेबिलिटी है, तो हमने 3 मंथ्स तक उसे कंटिन्यू करा, बहुत अच्छे से करा। लेकिन हमने ये आइडेंटिटी के लेवल पे नहीं ले गए कि आई एम द वन हु इज सिंसियर अबाउट माई टाइम, रिगार्डलेस ऑफ माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या कहते हैं नहीं कहते, कोच है या नहीं है, आई विल कीप दिस ट्रैकर विद मी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लेवल पे चेंज लाया है, और 6-7 मंथ्स बाद भी उनसे पूछते हैं तो उनका कंटिन्यू रहता है अपने आप। तो चेंज वो आइडेंटिटी के लेवल पे है या नहीं, है इम्पोर्टेंट है। अब जैसे बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेनिंग होती है, जब खासतौर से गवर्नमेंट जॉब्स में, तो बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग उसमें कराई जाती है, तब तो वो लोग कर लेते हैं कि भाई सुबह सुबह उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, जॉब है। उसके बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी आइडेंटिटी के लेवल पे ये बात आ गई कि भाई हमें फिट रहना है और फिटनेस मेरी वैल्यू है, तो वो उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं। इस तरह से कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स? आइडेंटिटी के लेवल पे कैसे चेंजेस आते हैं? अभी जैसे कि देवश्री सिस्टर कह रही थी कि उनका अभी नहीं, मतलब वो कहती है कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम का मोस्ट शी इज मोर कीन इन टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो अगर कुछ आदत से शुरू करते हैं एक बार, कुछ दिन करके छोड़ने के बजाय उसको अगर कंटिन्यू रखती है, तो उनकी वो आइडेंटिटी लेवल पर चेंज होकर वो एक आदत सी बन जाती है, एंड देन शी विल कंटिन्यू टिल द एंड। लाइक आई हैव दैट हैबिट कि हेल्थ को ठीक रखना है, तो आई कंटिन्यू विथ माई एक्सरसाइज, माई फूड हैबिट एंड एवरीथिंग। वो चेंज नहीं करते, किसी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई भी सिचुएशन में कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो वो एक हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल हो सकती है। अपना अपना एग्जाम्पल देना ना। दूसरा और भी हो सकता है। हम्म। जैसे जैसे लाइफ में अगर अभी अभी जैसे नया कुछ करना है मुझे, मैं अकेली रह रही हूँ, तो कैसे मैं अपने टाइम को सबसे सुंदर तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ, ये अगर मैंने डिसाइड किया, तो उसके लिए आई टुक सम एक्शंस दैट आई विल डू दिस सो दैट आई कैन स्पेंड माय टाइम विदाउट फीलिंग लोनलीनेस, विदाउट गेटिंग बोर्ड और ग्रम्बलिंग, ये सब नहीं करके ये अच्छा काम करेंगे तो मेरा लाइफ अच्छे से चल सकता है। कुछ दिन किया, उसको आदत बनाया, फिर वो आदत अगर बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो छूट जाएगी। छोड़ देने के बाद उसको अगर 2-4 दिन छोड़ देंगे तो छूट जाएगी, लेकिन उसको आदत बनाना है ऐसे ताकि मेरा अंदर की आइडेंटिटी लेवल तक चेंज हो जाए, मैं वैसे ही लाइफस्टाइल को लीड करूं अंत तक। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एक वैल्यू है। अब कोई कोई अपने घर को तब ऑर्गेनाइज करते हैं जब गेस्ट आते हैं, आने वाले होते हैं, कि हमारा घर थोड़ा ऑर्गेनाइज लगना चाहिए वरना लोग क्या कहेंगे, या कोई पर्टिकुलर ओकेजन है। लेकिन कोई कोई लोगों का ये आइडेंटिटी होती है कि आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, मेरे घर में सब कुछ चीज एस्थेटिकली परफेक्ट रखी है, मतलब उनको खुद से अच्छा लगता है, कोई आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ना, मुझे टाइम पे सारी चीज तरीके से मिलनी चाहिए। भले लोग आके कुछ भी कहें, लोग कहें कि तुमने तो अपने घर को म्यूजियम बना दिया, सो व्हाट, आई एम लाइक दैट ओनली। तो ये आइडेंटिटी हो गई, आई एम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो कोई आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। एक एग्जाम्पल है सर, कुछ दिन पहले सुना मैंने, जया बच्चन इज लाइक दैट, उनके घर में शी इज सो ऑर्गेनाइज्ड कि एक चीज इधर से उधर रखने का कोई नहीं कर सकता, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। सो तो ये उनकी वैल्यू हो गई। ऐसे बहुत सारी वो वैल्यूज उनकी हम वैल्यू हो ऑब्जर्व गया। कर सकते हैं लोगों से। जैसे एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल कई बार हमने सुना है, कोई जस्टिस थे कृष्ण अय्यर साहब,
Krishna. and he visited Mount Abu once. तो कोई इवनिंग में प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम 8-9 बजे, लेकिन वो अपने 7:30 या 8 PM पे सो जाते थे, क्योंकि वो सुबह उठ के बुक राइटिंग करते थे। तो उनके लिए गोइंग टू बेड अर्ली एंड डूइंग हिज राइटिंग वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस वाज मतलब हिज वैल्यूज। तो जगदीश भाई जी एंड डॉक्टर सचिन ये लोग बताते हैं कि उन जस्टिस की ये वैल्यूज थी, तो वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे, नो मैटर व्हाट, वो कहीं पे भी हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उनका जो उनको करना है वैसे ही करना है। तो ये अपनी अपनी वैल्यूज हैं, फिर हम उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऑल्दो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम एंड पर्सन टू पर्सन। Okay, next chapter, second last, relationship. Relationship myth. Love should not be hard. Be as one. Be together always, happily ever after. Relationship success means staying together at all cost. How to get better at relationship? Attachment, anxious attachment, avoidant attachment, secure attachment, अरे बाबा कितने सारे तरीके हैं, disorganized attachment, connection, self-awareness, emotional responsiveness, respectful complaining, repairs, turning towards gratitude, shared meaning and values, toolkit, getting clear on the kind of partner you want to be, and there are a few questions to reflect upon this. आप में से किसी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक पढ़ी है, तो उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। कैन एनीवन रिकॉल क्या कॉन्सेप्ट है वो? Never eat alone. मतलब Okay. something related to that. Sir, 7 habits of 7 हैबिट में एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा रिलेशनशिप के लिए, ना और वो बुक का नाम सर, बुक का नाम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक का नाम है। I think हाँ I जी 12 years ago, but हम्म, हाँ जी, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये भी रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द हैबिट। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल बैंक अकाउंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब ये काफी डीप अंडरस्टैंडिंग इससे मिलती है कि मतलब उससे हमें बहुत सारी बातों के जवाब मिल जाते हैं कि कोई रिलेशनशिप इतने टाइम तक तो चला, फिर अचानक उस दिन क्या हो गया, तो उस दिन आपका आपका डिपॉजिट खत्म हो गया आपने बहुत सारा बोरो कर लिया। तो इमोशनल बैंक अकाउंट कैसे काम करता है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ये समरी कोई पढ़ेंगे? interestingly on this point, आजकल स्कूल में भी 7 habits of happy kids. In CBSE, few schools are following this. ओके, उसके ऊपर एक बुक भी है, सो माय सन आल्सो हैज दिस। तो उन्होंने चार्ट बनाकर माय इमोशनल बैंक अकाउंट बनाया है इन स्कूल। ओके, टीचर इज मेंटेनिंग फॉर ईच ऑफ द किड्स टू टीच देम, सो व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा, ऐसी चीजें होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक वो उनके बेटे ने लिखी है बुक, जो स्टीफन कोवी है। शॉन कोवी आई थिंक, हाँ, राइट। आई कैन गो। जी। When it comes to a happy life, relationships beat money, fame, social class, and all the things we are told to put our efforts into. Our relationships and how happy we feel in them are not separate from our overall health. They are at the core of the equation. Our relationships and how happy we feel in them are not separate from our overall health.
They are at the core of the equation. Working on the self helps your relationships, and working on your relationships helps the self. So, vice versa, both ways. Attachment styles early in life can often be reflected in our adult relationships. Okay, so there are different attachment styles which we read through. So that early in life can often be reflected in our adult relationships also. So what kind of attachment styles we lived through. Yeah. तो जैसे मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है? अगर कोई पूछे अपने आप से कि मनी, फेम, सोशल क्लास और रिलेशनशिप, तो ये जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है ये चेंज होता रहता है. व्हेन वी आर 15-16 तो हमारा क्या है, फिर जैसे हम 22 में आएंगे तो क्या होगा, 30 में क्या है, 40 में क्या है. लेकिन अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स बीट मनी, फेम, सोशल क्लास एंड ऑल द थिंग्स वी आर टोल्ड टू पुट अवर एफर्ट्स इनटू. और कई बार ये बहुत देर में रियलाइज होता है, कई बार रियलाइज नहीं होता है. In fact, sir, if our relationships are okay at and family at the core level, then your everything will go fine. Your life will go fine. If you see that अपना family values अगर ठीक है, पूरा life, जिंदगी का life पूरा ठीक ठाक चलता है. Relationships अगर अच्छी है तो money doesn't matter there, social class वगैरह कुछ नहीं. सच में I have seen that. जे कृष्णमूर्ति एक बहुत अच्छी बात कहते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट हिम? जेके? एनीवन? ओके, ही सेज कि relationships are the mirror in which we see ourselves. It is only in the interaction or through interaction we can see who we are. Brighter side, darker side of us. This is reflected in the interaction only. Otherwise, how do we know? We can only imagine. That's the litmus test. Can you repeat that line? Relationships are the mirror, Okay. or interaction is the mirror in which we can see ourselves, who we are. Otherwise, how do we know who we are? हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हम इरिटेट होते हैं, या हम बहुत काइंड हैं, हमारे अंदर बहुत पेशेंस है. ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोगों के इंटरेक्शन में आएंगे. So we will read sometime a good book by him, revolutionary book. Okay, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है. थर्ड पॉइंट, वर्किंग ऑन द सेल्फ हेल्प्स योर रिलेशनशिप एंड वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप हेल्प्स द सेल्फ. लेकिन अगर हम एक को चूज करें और कहें हम दूसरे के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो वहां पे इक्वेशन गड़बड़ हो जाती है. तो आजकल अधिकतर लोग ये समझते हैं कि सेल्फ पे काम करना एक अलग अलग काम है, एक अलग ऑब्लिगेशन है. तो बाकी सारी चीजें जब हो जाएंगी तब हम सेल्फ पे ध्यान देंगे. तो फिर क्या होता है कि सेल्फ पे ध्यान न देने की वजह से बाकी सब पे ध्यान पूरा हो नहीं पाता. सो दिस इज एट द कोर. उसमें एक रिग्रेट फीलिंग रह जाती है सर. क्या जानते हैं, अल्टीमेटली दे से कि मैंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए कभी सोचा ही नहीं, उसका बदले में मुझे क्या मिला. ये कंप्लेन रह जाती है जिंदगी में. इट इज अ वेरी, आई मीन, रूट, यू कैन से रूट कंप्लेन, डीप रूटेड कंप्लेन. सबको देखा मैंने, खुद को नहीं देखा, उसके बदले में मुझे क्या मिला. तो उन सब में हम खुद भी आने चाहिए थे. यस, ये भी जरूरी है.
ओके, अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी क्या है ये। और अभी हमारा लास्ट चैप्टर है व्हेन टू सीक हेल्प। ओके, गुरप्रीत जी आप पढ़ेंगे क्या? The best time to seek support for your mental health is any time you become concerned about it. If you're not sure how much help you need, a professional can help you decide. In an ideal world, therapeutic services would be available to everyone. But, but we don't have that ideal world. If services are not accessible for you, take every opportunity to learn all you can about recovery and to use the support of trusted loved ones. जी, so what do we mean by professional help here? Someone who is trained in this field, हम्म, like the author in this book, she tells about her the professional journey. हम्म। So लेकिन that कई kind बार of लोगों को भी इसमें क्लैरिटी कम होती है कि किस तरह के Mhm, प्रोफेशनल की हेल्प उनको सीख करनी चाहिए। mhm. तो तो कौन कौन यस इसके लिए जी, बहुत क्लैरिटी चाहिए लाइक देयर इज द साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट काउंसलर सो ये डिफरेंट लेवल्स है एंड थेरेपिस्ट Mm. साइकोथेरेपिस्ट Right. Different एंड therapies. कोच। या कोच ऑल्सो हम्म, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट भी अच्छा है कि इफ सर्विसेज आर नॉट एक्सेसिबल फॉर यू, टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल यू कैन अबाउट रिकवरी एंड टू यूज द सपोर्ट ऑफ ट्रस्टेड लव्ड वंस। तो आजकल के इंटरनेट और ये सारी इन सब चीज़ों के ज़माने में बहुत सारी हेल्प हम खुद अपने आप भी कर सकते हैं अपनी, अगर हम थोड़े अवेयर हो जाए तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास है। one more thing that has happened after covid which is a very good sign that the central government is taking means it's paying attention towards mental well-being also and many states have launched helplines for supporting mental health so it has happened and this awareness has increased after covid. राइट। Uh, Actually, after COVID or during COVID time, people became so frightened mentally and so stressed out or depressed कि क्या होगा इसके बाद, ऐसा हालत हो गया था. Nobody had any hope. So that's why people were becoming mentally sick. सबसे बड़ा जब उसके फाइनेंस के ऊपर जब सबका असर आ गया बहुत ज्यादा, तब तो बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेशन में जाने का एक एटीट्यूड बन गया था सबका. ये थेराप्यूटिक सर्विसेज वुड बी अवेलेबल टू एवरीवन इन आइडियल वर्ल्ड. तो आइडियल वर्ल्ड कहाँ है हमारे भारतवर्ष में? आइडियल वर्ल्ड का मतलब ये भी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जिनको सर्विस चाहिए उनका रेशियो भी प्रॉपर हो। अभी वो बहुत हाँ, ज़्यादा गैप है, मतलब वी हैव वेरी फ्यू प्रोफेशनल्स हु सच कैन में. रियली हेल्प, और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इस बात की अवेयरनेस की भी कमी है कि हमें रिक्वायरमेंट है, लोग इस डिनाइल मोड में भी बहुत रहते हैं। दे थिंक कि नहीं, वी डू नॉट नीड सपोर्ट। और इंडिया में थोड़ा स्टिग्मा भी अटैच्ड है इन चीज़ों के साथ। Yes. व्हाई डू वी नीड दैट थिंग? किसी Yes, in फ्रेंड से India बात they करोगे। sorry sir.
No, you can say. Yes, in India they call psychiatrist as पागलों का doctor. हाँ Exactly. I mean, even how घर में जो नॉर्मल रिलेशन में जो झगड़े वगैरह बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती है, वो क्यों हो रहा है, उसके लिए एक जो थेरेप्यूटिक सर्विस चाहिए, वो एक साइकोलॉजिकल सेशन लेना वगैरह, वो भी हम लोग क्यों जाए? They need it, though they need it, they also feel that they need a help from someone who can sort it out, but they don't want to go and take help from someone professional. मुझे एक सेशन में कोई कह रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि फॉर अस पेडिक्योर एंड मैनिक्योर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेंटल हेल्थ, and even to the extent we have nail, spine, all these things, but for mental health we don't know. तो एक्चुअली एक पॉजिटिव साइड है इसकी कि हमें इन चीज़ों पे जब काम करना है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम अपनी हेल्थ तब बनाते हैं जब हम बीमार नहीं हैं, ताकि जब बीमारी वाली कोई बात आए तब हम तब भी हेल्दी रह सके, तब हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले बीमार पड़ना है फिर हम इस तरह की कोई चीज़ करें, पहले से ही हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। तो चाहे हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करें, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, या रीडिंग इस तरह की, या कोई अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है आजकल। ये इस सब में ना सर, आई थिंक मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट। अगर रेगुलर राइट वे में किया जाए तो मेडिटेशन रियली हेल्प्स यू इन एवरी एस्पेक्ट्स इन लाइफ, अफर्मेशन के थ्रू, या calming your mind or calming your total thought process, बहुत हेल्प करता है इसमें मेडिटेशन। सब कुछ मतलब टोटल बुक में लिखा हुआ मेडिटेशन के बारे में काफी सारा टाइम्स कि आप इसमें भी मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हो। किस किस चीज में, पूरा बुक में है वो, बहुत बार रिपीटेशन हुआ उसका। मेडिटेशन उसे हम कहें, या हम और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कहें, सिंपल कि आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग, दैट इज अ थिंग वी शुड प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। क्योंकि कई लोगों को मेडिटेशन वर्ड सुन के ही थोड़ा एवर्जन आ सकता है, वो कहेंगे कि नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है, हमें तो नहीं करना, तो फिर वो लोग उससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, जस्ट वी नीड टू थिंक राइट, और उसके लिए सर एक प्रोसेस है जो हम लोगों का, कि खुद को रीड करो, मतलब बैठ के थोड़ी देर सोचो क्या सोच रहे हो, यू चेक योर थॉट प्रोसेस, व्हाट यू आर थिंकिंग, साक्षी दृष्टा बन के डिटैच होकर थोड़ा सोचो, हर सीन में खुद को सोचो। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स। राइट। So here I would like to add that in this book, जैसे अल्पना जी कह रही थी कि अपने साथ बैठो, अपने आप को देखो, तो जर्नलिंग को हर जगह राइटर ने मेंशन किया है। इन एवरी चैप्टर शी हैज मेंशन्ड, एंड जर्नलिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग अबाउट द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जैसे पहले डायरी लिखते थे, नॉट लाइक दैट। इट इज राइटिंग योर नेगेटिव experiences also, and then asking meaningful, insightful questions. So that is the best way. Like those who can't connect with meditation, we can ask them to do journaling, and it really helps. Right. गुरप्रीत सिस्टर के साथ एक मतलब ऐड छोटा सा एडिशन है कि नेगेटिव के साथ जो आप जो आउटकम चाहते हो उसको भी लिखो, सो दैट यू कैन चेंज योर नेगेटिव थॉट्स को वो उस थॉट में जो आप रिजल्ट के तौर पे चाहते हैं, वो जर्नलिंग और भी ज्यादा एक्यूरेट। पता है, बात ये भी नहीं है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें उससे पॉजिटिव करना है।
ऐसा सुनने से ऐसा लगता है कि हम सब नेगेटिव ही सोच रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। No, not always. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो हमारे अननेसेसरी थॉट है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब वी कैन हैव मोर ऑप्टिमाइज्ड, मोर ओरिएंटेड, चैनलाइज्ड थॉट प्रोसेस। अभी भी जो है वो अननेसेसरी है, नेगेटिव नहीं है। हम नेगेटिव सोचने की मशीन थोड़ी है। ना, वो ये अननेसेसरी थॉट्स को स्टॉप करना, वो कैसे किया जाए, वो एक इम्पोर्टेंट टूल चाहिए उसके लिए। गोल ओरिएंटेशन। तो सर ओके। मैं ना इतना ज़्यादा सोचती थी, तो क्या सोचती थी नहीं पता चला। बचपन से मैं इतना ज़्यादा सोचती थी, अच्छे कोई क्लास में कोई अच्छे रिजल्ट किया, फर्स्ट हुआ, तो उसके बारे में ही सोचती थी, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कभी भी उस जगह पर जाएंगे। तो सोचते सोचते जो भी देखा दुनिया में, तो मेरे अंदर अपने आप ही चला गया और मुझे पता नहीं चला कि क्या गया क्या नहीं गया। इसी वजह से मेरा नेगेटिव हो गई। तो आपने बोला कि जे वो नेसेसरी अननेसेसरी, तो अब मुझे लग रहा है अननेसेसरी थॉट आया। मैं ऐसा नहीं हूँ। थैंक यू। इसमें एक कमिटमेंट हमें अपने आप से करना चाहिए कि हमें डेली 30 मिनट्स अपने, कम से कम, दिस इज द लोअर बाउंड, 30 मिनट्स अपने फिजिकल हेल्थ के लिए और 30 मिनट्स अपनी साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग के लिए हमें देना ही देना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ये हमारे मतलब नॉन नेगोशिएबल थिंग होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, या ये जिम्मेदारी आ गई तो हमने ये नहीं किया। वो फिर बहुत सारे बहाने बन जाते हैं। लेंगे। लेकिन इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल कि 30 मिनट्स फिजिकल हेल्थ, 30 मिनट्स मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स, जैसे कि गुरप्रीत जी ने भी कहा, जर्नलिंग, इंट्रोस्पेक्शन, या बीइंग इन ए ग्रुप लाइक दिस, कि कुछ रीडिंग कर रहे हैं हम, अच्छा कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि इस बारे में बहुत सारी स्टडीज होती हैं कि किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करने से हमारी हेल्थ पे भी क्या असर आता है, बोथ साइड्स, नॉट सो हेल्दी कंटेंट और हेल्दी कंटेंट। तो बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं आजकल के ज़माने में। तो दोनों ही बातें हैं, हमारी चॉइस है। तो एक और इम्पॉर्टेंट की वर्ड इसमें है इंटेंशनल चॉइस। हम दिन भर में कितने इंटेंशनल होके अपने डिसीजन लेते हैं, या वो बाय डिफॉल्ट जैसे होते आ रहे थे वैसे ही हो रहे हैं, या मजबूरी में हो रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ये तो करना ही पड़ेगा। वी हैव अ चॉइस। और ये बात अवेयरनेस में लगातार रहना, आई हैव अ चॉइस एवरी मोमेंट, कि मुझे क्या करना है। ये भी तो चॉइस है ना, इस सेशन में आना है या कुछ हमें रीड करना है, वरना आराम से हम सो भी सकते हैं 1 बजे। तो चॉइस है, वी हैव अ चॉइस। और इस चॉइस चूज करने की जो फैकल्टी है, उसको हमें बहुत अच्छे से यूज करना है। और विक्टर फ्रैंकल ने भी ये बात कही है अपनी बहुत अच्छी बुक में, मैंस सर्च फॉर मीनिंग, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में देयर इज अ गैप, एंड इन दैट गैप लाइज अवर चॉइस। सर रिपीट। कोई भी स्टिमुलस आया, उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इतना जल्दी जल्दी ऑटोमेटिक हो रहा है कि इसके बीच में कुछ गैप नहीं है, लेकिन उसके बीच में गैप है, और उस गैप में चॉइस है। इस बात की अवेयरनेस लगातार रहना, ये अपने आप में एक साधना है। ये भी प्रैक्टिस की और माइंडफुलनेस की बात है कि आई हैव अ चॉइस। अदरवाइज क्या होता है ना, किसी भी अच्छे काम में हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, हम उसे छोड़ने की सोचते हैं पहले। रीडिंग इज टू मच फॉर मी, लेट अस क्विट। Yes, it is too much. Lot of things have been too much. Life is too much. Why don't we quit life? तो हमें उस चीज को समझना है कि हमारा
बहुत टाइम का जो एक संस्कार है, हमें उसको ओवरकम करना है, और सारी बात अपने ऊपर काम करने की है, और कोई बात नहीं है। Actually, we have become habituated with staying in comfort zone. यस यस So today, I want to share one today's experience जी on this comfort zone and feel good factor जो कल हम बात कर रहे थे. So in my to-dos agenda for the day, I had two difficult ones. Not difficult, but challenging. One is that assignment for today itself, and the first one was which was work-related, office-related. So I thought, okay, I have to do. I was feeling it was difficult for me to even start. I was feeling, okay, I will do this. Let me do something else. Let me have a cup of tea. And but then I decided, no, I'll have a cup of tea once I finish this. So I started doing that. It was feeling like a heavy chore. मतलब इतना बड़ा difficult task है, वो मैं कैसे करूंगी इसमें. ये मैं बाद second half of the day में कर सकती हूँ, इसको छोड़ सकते हैं तब तक में. But when I did, जब वो हो गया, तो मुझे लगा अरे वाह. उसके बाद वो feeling, then I got a kick to do the second one कि ठीक है अभी फटाफट उसको करते हैं. तो वो कंफर्ट जोन से, जैसे अल्पना सिस्टर कह रहे थे, वो थोड़ा बाहर निकलना रहता है, बट इट इज योर चॉइस, इंटेंशनल चॉइस वंस यू पुट इन टू. तो वो और हेल्प करता है टू डू बेटर चॉइसेस. यस जो ब्रायन ट्रेसी का बुक है ना, ईट दैट फ्रॉग, सो ईट द अर्लीस्ट फ्रॉग फर्स्ट. So once you eat that, then it becomes your momentum, and बाकी सब frog eat करना easy है, छोटे छोटे काम तो हो जाते हैं. एंड इसको हम उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेबल्स, रॉक पेबल्स एंड सैंड, जार ऑफ लाइफ, जो हमारी प्रायोरिटी का जार है. तो पहले उसमें हम क्या फिल कर रहे हैं, मतलब मैं क्या ही शेयर करूं कि छोड़िए, कभी और शेयर करेंगे कैसे कैसे एक्सपीरियंस लोगों के आते हैं. सर बोलिए. बोलिए बोलिए. प्लीज हाँ शेयर. नहीं, जैसे कि जैसे बहुत लोगों से हम टाइम ट्रैकर फिल कराते हैं, ठीक है, तो इनिशियली कुछ दिन, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, किसी का है, सबका नहीं होता, कि सुबह 9 बजे से 8 बजे से 10 बजे से सपोज आप ट्रैकर में लिख रहे हो, एंड इट इज गुड थिंग कि आप लिख रहे हो, एटलीस्ट आप ऑनेस्ट हो. 8 to 9 watching comedy, 9 to 10 watching comedy, 10 to 11 miscellaneous calls, then lunch, then rest. Where are the rocks and pebbles? This is just sand. Even sand भी नहीं है तो. So how we are filling our day, और हम कितने नॉन प्रायोरिटी टास्क को हम कर रहे हैं अपनी पीक एनर्जी में. पीक एनर्जी में हमें सबसे डिफिकल्ट टास्क को लेना चाहिए, ताकि वो एनर्जी उसके संग मैच करे. डेफिनेटली. तो जो एनर्जी इंटेंसिव टास्क है वो हमारे क्या है. तो ये मतलब बता रहा हूँ कि इनिशियली ऐसा भी होता है. तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दिस कुड बी. मतलब आप सोच सकते हैं ना कि कितने हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ये, या कितने हम उसके वश में हो जाते हैं कि हमारी हालत ऐसी हो जाती है. या फिर हम 1 घंटे से स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम या कुछ भी, और फिर हम ट्रैकर में लिख भी नहीं पा रहे कि घंटे खड़ा क्या हुआ पता नहीं. लेकिन इट इज ओके, इट हैपन्स, इट इज ओके. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम धीरे धीरे ओवरकम करें इसे, और फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आती है कि ईच आवर काउंट्स, ईच मिनट काउंट्स. पर सर जो लोग महीनों टीवी नहीं देखता, इंस्टाग्राम वगैरह तो दूर की बात है उनके लिए, वो उनके लिए क्या होता है. तो हर एक का है ना अपना अपना वेस्ट का तरीका होता है. हर एक के अपने अपने सोर्स हैं. तो जब टीवी नहीं था तभी भी लोग बहुत टाइम ऐसे ही जाता था उनका. जैसे कि आई लिव इन विलेज काइंड एरिया, तो यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टीवी है, कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट जजिंग देम, लेकिन टाइम फिर भी वेस्ट जाने के बहुत तरीके हैं, अगर हमारा कोई इंटेंशन या पर्पस नहीं है तो. I can give an example for this.
जी from my personal life. My grandmother, from 10 to 1 p.m., she used to sit with her friends. And then after lunch, after a short nap, again she used to go there. And then she used to come back by dinner time. हाँ, लेकिन उनके लिए हो सकता है वो ठीक है, लेकिन हमें अपना देखना है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो, और फिर जो हमने कल परसों पढ़ा भी था ना कि अगर हमारी लाइफ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो दोनों में ही मज़ा नहीं आता, दोनों में ही फ्लो स्टेट नहीं होती, तो बहुत ही बोर्डम वाली लाइफ हो जाती है, फिर मीनिंगलेस लाइफ हो जाती है। कुछ उसमें एक मीनिंगफुल चैलेंज होना जरूरी है। सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम का सोर्स है वो सारी बातें। ऑलराइट, Thank you, sir. So तो much of insight. आप सभी के कोऑपरेशन से ये बुक फाइनली कंप्लीट हो गई, जैसे भी की, गुड इनफ, नॉट परफेक्ट वन। Not perfect one, but good one, really. हाँ, एटलीस्ट मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था हमारा कि हमने इस तरह से समरी के At थ्रू। least we finished the book, sir. हाँ, That's a yes. congratulations to all of us. We finished it. एंड बुक के आलम्बन से या उसके सहारे से हमने एक मीनिंगफुल डिस्कशन किया लगातार 6 days। Yes. That is also important thing. This culture of discussion, culture of argument, culture of deliberations, this thing is important कि एटलीस्ट वो सारी चीजें हमारे डिस्कशन में आई, और आगे भी वो चीजें फिर हम करते रहेंगे। बाकी फिर शाम को मिलते हैं 8:30 PM। आज यस, मैसेज नहीं देखा आपने? देखा सर, वही तो रोना आया, तभी तो रोना आया सर। आपने बोला कल नहीं लेंगे, मंडे को नहीं लेंगे, फिर आपने तो आप मंडे को भी बताइए। टाइम दे दिया। दूसरा काम कब करूंगी सर? पढ़ने का भी तो टाइम नहीं दे रहे आप। इतना यही तो समय बात हो रही है, नाउ इंट्रोस्पेक्ट। हो रहा है, खबर मेरा काम कितना रहता है सर वो। Sister, so this was one of the 2 difficult tasks which I said ना, तो ये भी बाकी है, करते हैं। मेरा पूरा होमवर्क बाकी है, पूरा का पूरा, चारों का 4 होमवर्क बाकी है, सब बाकी है, खत्म ही नहीं हो रहा है। एंड उधर से my groups में I have some group services, they are saying